Hi guys, have a great day. In this video, I am going to explain the data center redundancy levels. Okay, how it is important and how what the terms like n plus one, n plus two, 2n and 2n plus indicates in data center in terms of redundancy. In terms of data center redundancy, okay, it is important to recognize the risk and capabilities of the various data center architecture, like including the n plus 1, n plus 2, or n plus 2, n plus 1. Okay, data center address the downtime by building redundancy into their infrastructure. A redundant DC infrastructure having some redundant critical components such as a UPS system, cooling system, backup diesel generator system to ensure our data center operation can continue even if any components fails. So if you want to have a more reliable and complete fault tolerant data center, then there should be very good redundant architecture that should have, okay, like 2n and 2n plus 1. Now I'm coming back on the point that what is that means our main purpose, that I will just explaining you the one by one terms, that like n plus 1 and n plus 2 and 1 and 2 n plus 1. Okay, n, what is mean by n? And okay, n is the minimum capacity needed to your data center at full IT load. For example, if your data center required capacity is 400 kVA and you have a 400 kVA with you, and there is no any another redundant UPS available to cater the load, that means only one UPS that you have, 400 kVA UPS. It means your data center having only n redundancy. As show you in picture, that only 400 kVA UPS that you have. Okay, सो मीन्स अब अपने पास एक ही यूपीएस है जो 400 केवी का यूपीएस है, और डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट भी 400 केवी है एट फुल लोड पे। तो अनदर कोई रिडंडेंट कंपोनेंट है ही नहीं जो कि लोड कैटर कर सके। सो ये इसमें अगर ये यूपीएस फेल होता है एन एन में, ये यूपीएस फेल होता है तो कोई रिडंडेंट कंपोनेंट नहीं है, आपका पूरा मतलब जो आईटी लोड है ये या डिस्टर्ब करेगा, डाउन हो जाएगा आगे का जो इक्विपमेंट से। ओके, अभी जो नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दिख रहा है, दैट इज मीन्स एन प्लस वन रेजिडेंसी। एन प्लस वन रेजिडेंसी क्या करता है, जो आपको एन जो रिक्वायरमेंट है, एन जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर में खाली वन ऐड होता है। अगर आपका रिक्वायरमेंट अगर 800 केवी है, अभी जो पिक्चर में 400 400 और 400 के जो तीन यूपीएस है, और आपका डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट 800 केवी है, ओके, और एक 400 केवी का यूपीएस ऐड ऑन हो गया आपके यूपीएस के आर्किटेक्चर में। दैट मीन्स if you want to perform any maintenance activity on one UPS, okay, so you can perform because you have one more redundant component with you. That means another 400 kVA आपके पास है। अगर कोई आपको डाउन टाइम लेना है तो आप एक यूपीएस पे ले सकते हैं। अगर एट द सेम टाइम अगर दो यूपीएस फेल होते हैं तो तीसरा जो यूपीएस है वो आपका लोड कैटर नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास दो एक ही रिडंडेंट कंपोनेंट है। मीन्स आपके सिस्टम में अगर कोई एक सिस्टम फेल होता है तो उसको कैटर करने के लिए अनदर सिस्टम है। अगर एक से ज़्यादा होता है तो आपका सिस्टम वो लोड कैटर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये क्या है, एन एन मीन्स 800 केवीए यूपीएस आपकी एन रिक्वायरमेंट है, 400 प्लस 400, और अनदर यूपीएस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, इट इज 400 केवीए। दैट मीन्स एक फेल होता है तो एक कैटर करेगा। दैट मीन्स एन प्लस वन, मतलब एन आपका रिक्वायरमेंट है, और एन 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 में से एन अगर 10 रहेगा, 12 रहेगा, 15 यूपीएस रहेगा, कितना भी एन यूपीएस होता है उसमें से एक फेल होता है तो एक को कैटर करने के लिए इसके लिए वन आपके वन आगे इंडिकेट किया है, मीन्स एन प्लस वन। Now I'm coming the another redundancy level, that is the 2N data center architecture. Okay, 2N redundancy models create a mirror image of your original system. Means if your requirement is N and another system is there, okay, that means the redundant system. And there is a 2N plus N. Okay, this means if two UPS units are necessary to satisfy the capacity requirements, the redundant architecture would include an additional two UPS units. Okay, for the total 2 plus 2 4 UPS system.
This design also utilizes the two independent distribution systems. Means the this architecture allows the data center operator to take downtime of entire set of the components for the maintenance without interrupting the normal operation. मीन्स नॉर्मल ऑपरेशन को कोई इंटरप्ट नहीं करके पूरा एक साइड पूरा डाउन कर सकते हैं हम लोग. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा एक साइड का डाउन कर सकते हैं और कोई भी मेंटेनेंस एक्टिविटी करना है तो कैरी आउट कर सकते हैं. ओके. So further in the event that the primary architecture fails, the secondary architecture takes over to maintain the service. Okay. So तो पिक्चर में जो दिख रहा है आपको कि ए साइड में 400 प्लस 400 के 2 यूपीएस है और बी साइड में 400 प्लस 400 केवी के 2 यूपीएस है. डैट मीन्स अगर आपका डेटा सेंटर का रिक्वायर्ड कैपेसिटी एन इज इक्वल टू 800 केवीए है. ओके. सो तो ए साइड में 400 प्लस 400 का पैरेलल में 800 केवीए यूपीएस है, बी साइड में 800 है. डैट मीन्स ये कंप्लीटली फॉल्ट टोलरेंट डेटा सेंटर है. मीन्स एन प्लस एन, ए साइड में एन है, बी साइड में. अगर ए साइड पूरा कंप्लीटली फेल होता है तो यूर डेटा सेंटर रोल विल बी कैटर्ड बाय अनदर डिस्ट्रीब्यूशन बी साइड सिस्टम. ओके. तो बी साइड का पूरा लोड कैटर करेगा. So in this n plus n redundancy, both the path are independent with each other. Means ये n और दूसरा जो n है जो इंडिपेंडेंट ईच अदर रहता है. मतलब एक साइड अगर कोई अफेक्ट्स हो गया तो उसका अफेक्ट बी साइड में नहीं गिरेगा. तो ये पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पाथ रहता है. ओके. तो n प्लस वन. अगर नाउ आपके मन में याद है कि व्हाट इज द 2n+1. 2n+1 क्या है? ओके. तो ये अभी जो पिक्चर आपको दिख रहा है 2n+1 मीन्स आपका डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट है 800 केवीए. ओके. और 800 केवीए रिक्वायरमेंट है. तो आपको दिख रहा है कि ए साइड में 3 यूपीएस है, बी साइड में 3 यूपीएस है. ओके. ए साइड में 3 यूपीएस है, बी साइड में 3 यूपीएस है, ए साइड में 400 के 3 यूपीएस है. तो आपका रिक्वायरमेंट 800 केवी है. बट आपने यूपीएस जो है वो 400 प्लस 400 1200 केवीए की ए साइड की कैपेसिटी है और 1200 केवीए की बी साइड की कैपेसिटी है. ओके. तो ये दोनों सिस्टम तो इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ए साइड और बी साइड. तो n+n तो हो ही गया. ओके. अगर ए साइड पूरा फेल होता है इन केस ऑफ इंसिडेंट कंप्लीट ए साइड डाउन होता है तो बी साइड लोड कैटर करेगा. तो बी साइड में भी अगर 3 यूपीएस में से 1 यूपीएस फेल होता है तो आपको इधर बी साइड में भी n+1 रिडंडेंसी मिल रही है बी साइड में, अगर 1 यूपीएस आपका फेल हो रहा है तो. ओके. तो ये n+n रहता ही है. और नॉर्मली n में एक एडेड ऑन होता है. ओके. यूपीएस दैट मीन्स n+1 ए साइड में n+1 है, बी साइड में n+1 है. दैट टोटल कितना हो गया 2n+1. मतलब ये सिस्टम तो n+n यही है. ए साइड कंप्लीट फेल हो गया तो बी साइड कैटर करेगा ही. अगर बी साइड में अगर कोई एक्स्ट्रा यूपीएस और डाउन होता है तो आपके लिए एक रिडंडेंट उधर अवेलेबल है. तो ये क्या सिस्टम हो गई 2n+1. 2n+1 एक्चुअली क्या रहता है 2n+1 डिलीवर्स द फुल्ली फॉल्ट टॉलरेंट 2n आर्किटेक्चर प्लस एक्स्ट्रा कंपोनेंट फॉर एन एडेड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन. दैट मीन्स वन मोर कंपोनेंट इज एडेड इन n. अगर आपको माइनर कोई भी सर्विस से डिस्ट्रप्शन नहीं होना है तो ये दैट मीन्स दिस लेवल ऑफ रिडंडेंसी जनरली यूज्ड बाय लार्ज कंपनीज विच कैनॉट टॉलरेट इवन माइनर सर्विस डिस्ट्रप्शन इन द सर्विस. Now I am going to highlight some of the points here. Okay. So in these pictures you can see there is a 2 UPS connected in parallel configuration. 300 kVA one UPS and 300 kVA another UPS connected in parallel configuration, and grid supply and another DG supply connected at ATS level. So if your data center requirement is 300 kVA at full load, so you cannot consider this as n+n redundancy. Why? Because actually what means n+n means there is a two completely independent isolate power path. ओके. सो बोथ द पाथ कैनॉट डिपेंडेंट ईच अदर. सो इधर क्या हो रहा है अगर 300 और 300 एक ही पैरेलल में कनेक्टेड किया है. सो दिस डिज़ाइन वी कैनॉट से दैट n+1 इसके लिए क्या चाहिए अपने को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चाहिए. सो डिपेंडेंट सिस्टम कैनॉट बी कॉल एज n+n.
So thank you guys. Hope you guys understood the redundancy, complete redundancy of the data center. And thank you for the day.